Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. A tiger in the house. Oh my god, horror? नहीं. एकदम serious suspense? नहीं. कैसी story होनी चाहिए? A tiger in the house. Okay, funny? I don't know. So let's read this. So today we are going to start with the 8th chapter of our An Alien Handbook, and the name of our chapter is A Tiger in the House, which has been written by Ruskin Bond, and it is slightly abridged. Now every time I tell you the meaning of abridged का मतलब होता है where your chapter is shortened a bit. मतलब अगर 10 पेजेस का है तो उसको 7 या 6 पेजेस कर देते हैं where the entire context remain the same, आपकी story remains the same, characters remain the same, सिर्फ उसकी length थोड़ी बहुत lines काट देते हैं so that it becomes short, right? So here we are going to start with this chapter, A Tiger in the House. कैसी होनी चाहिए story? Let's see, let's find out. So the tiger is saying welcome, and let's start. Before we read, grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. Okay, would you do that? अगर आपको टाइगर का एक बहुत छोटा सा क्यूट सा कब मिले तो आप उसको घर लेके आ जाओगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको खा जाएगा? नहीं, देखते हैं क्या होता है. Grandmother calls him Timothy and brings him up like a human child. और जो ग्रैंड ममा है वो भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. So she raises that tiger cub just like a human baby. Timothy is playful and naughty. His companions are Toto, the monkey, a puppy, and other members of the household. Timothy जो है, ये जो टाइगर का कब है, he is very playful and very friendly, and he has a lot of friends. Okay, so now let's read the chapter. Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. अब देहरा के पास में एक तेराई जंगल है. So जो grandfather अपने हैं वो बड़े स्पोर्टिव हैं, ठीक है. तो वो घूमने गए होंगे जंगल में, वहाँ उन्होंने देखा टिमोथी जो था, उनको टिमोथी मिला. वहाँ पे टिमोथी कौन है? एक टाइगर का बहुत ही छोटू सा कब है. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. So एक दिन क्या हुआ, जब वो स्ट्रोल कर रहे थे, मतलब नॉर्मली जो अपन लोग वॉक पे जाते हैं, तो वैसे जब वो वॉक पे जा रहे थे फॉरेस्ट के, जो फॉरेस्ट का रास्ता था, तो क्या था, वो अपनी पूरी जो पार्टी, मतलब जो बाकी के लोग उनके साथ थे, वो उनसे थोड़ा अलग निकल गए थे. और तब उन्होंने देखा एक छोटू सा टाइगर कब, और वो कितना बड़ा था, वो सिर्फ 18 इंचेस जितना था, ओनली 18 इंचेस, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ banyan tree. इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड जो होती है. सो banyan tree की जो रूट्स थी उसमें कहीं तो वो छुपा हुआ था. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. Now grandfather ने क्या किया? उन्होंने उसको उठाया और उसको घर पे लेके आ गए. And वो जो थे, he had a distinction. Distinction मतलब क्या था? उनको एक एज मिला था, अपर एज मिला था. क्यों? जितनी भी बाकी उनकी पार्टी गई थी, उनके जितना पूरा फ्रेंड सर्कल उनके साथ फॉरेस्ट में गया था, किसी को कुछ नहीं मिला, इन्हीं को कुछ मिला, और ये हमेशा इन्हीं को कुछ अच्छा मिलता था. At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. अब वो जब टाइगर का कब बहुत बहुत छोटा सा था, तब उसको सिर्फ और सिर्फ मिल्क दिया जाता था, और वो भी एक, जैसे एक छोटा बेबी को दिया जाता है ना, एक जो फीडिंग बॉटल होती है, फीडिंग बॉटल जिसमें निपल्स होते हैं. सो उसमें से उनका जो कुक था महमूद, वो उसको जो था फीड करता था मिल्क. एंड उसको, मतलब टाइगर कब्स जो होते हैं, इनिशियली कोई भी जो छोटा बेबी होता है उसको आप मिल्क ही देते हो. बट द मिल्क proved
too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. लेकिन मिल्क जो था ना वो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, मतलब मिल्क जो था वो काफ़ी रिच हो गया था उसके लिए। काफ़ी रिच का मतलब वो उसमें डाइजेशन इश्यूज आने लग गए थे, तो उसको मिल्क को रिप्लेस करके अब उन्हें क्या देना स्टार्ट किया, उसको दिया गया रॉ मटन दिया, और उसके साथ उसको कॉड लिवर ऑयल, जो फिश वाला जो ऑयल होता है कॉड लिवर ऑयल, ये दोनों चीज़ें उसको देना स्टार्ट किया टू बी फॉलोड। और बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके बाद उसको क्या देने लग गए वो लोग, पिजन्स एंड रैबिट्स, मतलब पिजन्स और रैबिट्स का मीट जो था वो देने लग गए उसको। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि टिमोथी की डाइट क्या थी। तो इनिशियली हमने क्या दिया, उसको मिल्क दिया बट ही कुड नॉट डाइजेस्ट इट, तो लेटर उसको क्या दिया अपन ने, मटन दिया एंड कॉड लिवर ऑयल, उसके बाद पिजन्स और रैबिट्स। सो उसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। उसके 2 दोस्त भी थे, ही हैड 2 कंपेनियंस, Toto the monkey who was bold enough to pull the young tiger by the tail. So उन्होंने काफ़ी सारे जानवर पाल रखे थे, जिसमें से एक मंकी था जिसका नाम था टोटो, और वो क्या करता था, वो टाइगर की टेल से खेलता था। ही वॉज बोल्ड इनफ, मतलब मंकी टाइगर की टेल से खेल रहा है, जस्ट इमेजिन। टाइगर का दिमाग खराब हुआ तो कुछ नहीं, अभी छोटा है टाइगर, लेट्स सी। So and then climb up the curtains and Timothy has lost his temper. और उसके बाद वो पहले खेलता था, उसको टीज करता था, जैसे टिमोथी को गुस्सा आता था तो फटाक से कर्टन्स को क्लाइंब करके ऊपर पहुंच जाता था। अब टिमोथी वहां तक तो जा नहीं सकता था। And a small mongrel puppy found on the road by grandfather. Now what is the meaning of this word mongrel? Mongrel का मतलब होता है एक कोई भी डॉग, जैसे अगर आप रास्ते से कोई भी डॉग उठा के लाते हो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन सी ब्रीड का है, वो एक पर्टिकुलर एक लैब्राडोर है, रिट्रीवर है, क्या है, या वो मिक्स्ड ब्रीड है, नहीं पता, बिकॉज वो एक स्ट्रे डॉग है, वो कहीं पे भी, वो कोई भी ब्रीड का हो सकता है, उससे हम कहते हैं मॉन्ग्रेल। तो ग्रैंडफादर को रास्ते में एक बहुत क्यूट सा पपी मिला था एंड मे बी ही वॉज ऑल्सो नॉट डूइंग गुड, तो ग्रैंडफादर उसको भी घर लेके आ गए थे। तो ये दोनों जो थे, ये दोनों हमारे जो टिमोथी है, हमारा जो टाइगर है, उसके कंपेनियंस थे, उसके फ्रेंड्स थे। एट फर्स्ट टिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy. अब टिमोथी बहुत छोटा था तो इनिशियली ना उसको पपी से बहुत डर लगता था, एंड darted back with a spring if it came too near. और जैसे ही वो पपी बहुत पास आता था तो वो उछल के दूसरी जगह चला जाता था। darted का मतलब क्या है, moved और rushed suddenly, मूव्ड और रश्ड सडनली। देखना कभी आप किसी डॉग के पास जाते हो तो अचानक से वो लोग अबाउट डन मार लेते हैं, सो दिस इज नोन एज डार्टेड। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculous safe distance. तो वो क्या करता था, टिमोथी क्या करता था, he would make absurd dashes. absurd dashes मतलब वो है ना, ऐसे जब आप किसी को डराना चाहते हो तो क्या करते हो, एकदम से उसकी तरफ लपकते हो, जो आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स हियर। सो वो एकदम से उसकी तरफ लपकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सो वो है ना, उसको डराने के लिए ऐसे उसकी तरफ डैश करता था, मतलब बहुत फटाक से उसके पास जाता था, विद हिज लार्ज फोरपॉज, अपने फोरपॉज से उसके पास जाता था, एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। लेकिन उसके बाद उसको जोर से डर लग जाता था, तो फिर रिट्रीट मतलब वापस आ जाता था एक डिस्टेंस मेंटेन करके, कि वो कुछ ना करे। उसने डराने की कोशिश की, फिर जोर से डर लग गया, खुद ही वापस आ जाता था। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर सेंटेंस। Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. Finally, उनकी दोस्ती हो गई एंड उसने बोला पपी को ठीक है, तो वो पपी अब उसके ऊपर आता था, उसके ऊपर चढ़ जाता था, उसके ऊपर लोड लगा देता था, एंड ही वॉज प्रिटी फाइन विद इट। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. Now here the writer of our story, he is saying that Timothy को सबसे ज़्यादा अमेजिंग काम क्या लगता था। अम्यूजमेंट्स मतलब होता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है, उसको एंटरटेनिंग क्या लगता था, जब ना कोई उसके साथ जो खेलता था वो उसको स्टॉक करता था। स्टॉक करना मतलब उसके पीछे पीछे जाना, तो जो उसके साथ खेलता था वो उसको स्टॉक करता था। इसीलिए जब हमारे राइटर सर अपने ग्रैंडफादर के पास गए थे तो टिमोथी उनका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। क्यों? क्योंकि टिमोथी के साथ वो बहुत खेलते थे और टिमोथी को बड़ा मज़ा आता था।
with a crafty look in his glittering eyes. So with a crafty look in his glittering eyes, मतलब crafty का मतलब क्या होता है, cunning. तो उसकी जो glittering eyes थी, चमकती हुई आंखों में जो cunning look होता था, and his body crouching, he would creep closer and closer to me. So वो cunning look मतलब, अच्छा भी मैं बताता हूँ, उस cunning look के साथ वो धीरे धीरे जो था वो मेरे पास आता था, suddenly making a dash for my feet. एकदम से आके मेरे पैर के पास आके वो मतलब एक तरीके से डैश करता था, सडनली वो आता था, जंप करता था. रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट. और फिर वो अपने वो लोट लगाता था वहाँ पे, रोल करता था अपने बैक पे, और उसके बाद मतलब बहुत खुशी के साथ, मस्ती के साथ ही यूज्ड टू किक एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, एज इफ, ऐसे ना वो प्रिटेंड करता था, नाटक करता था जैसे वो मेरे एंकल्स को खा रहा है. एंकल्स क्या होते हैं, जो हमारा जो पैर होता है, जहाँ पायल पहनते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एंकल्स. तो वो वहाँ पे ऐसा लगता था वो उसको चबा रहा हो, खा रहा हो. जब आपके पास अगर डॉग्स हैं तो यू कैन कनेक्ट विद इट, क्योंकि डॉग्स भी ऐसी हरकतें करते हैं. He was by this time the size of a full-grown retriever. अब retriever is a kind of dog and उसकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है. तो अब टिमोथी जो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, उसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई थी. And when I took him out for walks, now imagine guys, आप जो हो मतलब अगर हम किसी एकदम पावरफुल डॉग को भी देखते हैं तो हम उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं. ऐसे में कोई टाइगर को घुमा रहा हो तो जो अगल बगल में जो लोग चल रहे हैं, क्या हालत होगी उनकी. उनको लगेगा ना कि भाई तुम दूर ही रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो, दूर से ही अच्छे लग रहे हो, पास आने की ज़रूरत नहीं है. सो पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ. वाइड बर्थ मतलब वो लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेते कि अरे बाप रे, टाइगर के साथ सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, दूर ही रहो. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. तो जब वो छोटा था और वो उसको वॉक पे लेके जाते थे तब तक तो इजी था उसको कंट्रोल करना. अब वो इतना बड़ा हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया है, तो जब उसको कोई चीज़ के पीछे वो भागता है तो उसको चेन से पुल करना और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. उसका फेवरेट काम क्या था, उसकी फेवरेट जगह क्या थी, तो पूरा जो ड्राइंग रूम था हाउस का, उसमें एक रिक्लाइनिंग सोफ़ा था, मतलब एक बड़ा सा सोफ़ा था उसमें. वो वहाँ जाके एकदम से टाइगर्स बैठ जाते हैं वैसे जाके माइटी तरीके से अपनी पूरी डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ वो वहाँ पे जाके बैठ जाता था. और अगर कोई आता था उसको वहाँ से हटाने के लिए तो ही वुड स्नार्ल एट हिम, मतलब ग्राउल करता था, एग्रेसिव ग्राउल, मतलब नहीं जाना मुझे यहाँ से, वैसा वाला. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. तो वो जो था वो बहुत क्लीन था, मतलब वो बहुत ही हाइजीन में रहता था. एंड ही वुड स्क्रब हिज बॉडी, मतलब जैसे कैट अपने आप को स्क्रैच करती है, अपने आप को क्लीन करती है, सो सेम तरीके से टिमोथी भी करता था. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात में उसे कहाँ सुलाते थे, कुक के क्वार्टर में सुलाते थे. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग. किसी भी जानवर को बंद रहना तो अच्छा लगता नहीं है, तो जब सुबह जैसे ही कुक दरवाज़ा खोलता था सो दैट ही कैन गो आउट, उसको बड़ी खुशी होती थी. एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. नाउ वी हैव गॉट सम क्वेश्चन, सो लेट्स क्विकली चेक कि अभी तक हमने जितना पढ़ाया है कितना हमारे पल्ले पड़ा और कितना ऊपर से निकल गया है. अगर अच्छे से समझा है तो ये सारी चीज़ें इज़ गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, और अगर नहीं समझा है तो ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगेगी, और आगे बढ़ने से पहले वापस पूरा वीडियो देखना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game. The phrase in italics, ये जो पूरा जो है bagged any game, ये एक phrase है, इसका मतलब क्या होता है, grandfather was the most distinguished member of the party, मतलब वो एकदम अलग थे. सेकेंड, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी, मतलब क्या वो ही अकेले थे जो काफ़ी स्पोर्टी थे. ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, तो जितनी आपकी हंटिंग पार्टी है, जो लोग गए थे फॉरेस्ट, उसमें से उन्हीं को मिला था. तो क्या ही वॉज द ओनली सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द हंटिंग पार्टी? यू हैव टू टेल मी योर राइट आंसर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? अगेन, क्या वो बहुत ज़्यादा अलग थे, क्या वो बहुत स्पोर्ट्स पर्सन थे, या पूरे हंटिंग पार्टी में वही सक्सेसफुल थे?
So the answer here is that he was the only person who could bag anything. बाकी किसी को कुछ नहीं मिला था, लिविंग और डेड. इनको एक छोटा सा टाइगर का कब मिला था, टाइगर का कब मिला था. तो he was the only successful person in the entire hunting party. Let's see the next question. Complete the following sentences. Toto climbed up the curtains when. Toto कब, Toto कौन था, मंकी था, और वो कर्टन्स पे कब चढ़ जाता था. He used to climb when Timothy used to get anger, right, angry. जब वो उसकी टेल के साथ खेलता था and Timothy used to get very angry. The moment he would feel bad, he'll just go and climb the curtains. Dash, I became one of the tiger's favorites and Timothy had clean habits. So now what you have to do in these three, fill up the blanks. Book में जाके where these lines are written, you have to only complete the sentences. So let's see the answer. Toto climbed up the curtains when Timothy lost his temper. Temper मतलब आपका जो cool होता है, आपका anger होता है, तो the moment he is very angry, lost his temper, तो वो जो टोटो होता था ऊपर चढ़ जाता था. When I came to live with my grandfather, I became one of the tiger's favorites. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. Cool? Chalo, let's move forward. Here, as Timothy grows up, now we are moving, we are continuing with the story. अब जैसे टिमोथी बढ़ गया, वो बड़ा हो गया, so obviously उसकी needs बढ़ेंगी, obviously उसका taste change होगा, और वो बड़ा हो रहा है, लोगों को उससे डर भी लगेगा, तो he became less friendly and rather dangerous. तो वो कम फ्रेंडली हो गया था. जैसे बचपन में वो कितना सबके साथ खेलता था, मस्ती करता था, अब वो कम फ्रेंडली हो गया, थोड़ा डेंजरस भी हो गया था. एंड ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि वो उसको जू भेज देंगे. एंड 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. Timothy is happy to see grandfather, or is he? So we are going to know this in like if we continue the story. So let's do that. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner. Prophetic मतलब भविष्यवाणी करते हुए. Okay? So prophetic का actual मतलब क्या होता है? Accurately predicting what will happen in the future. जब आप accurately बताते हो, ये देखना, ये तो होगा ही होगा. Okay? उसको बोलते हैं prophetic manner में कुछ कहना. So grandmother ने क्या declare किया? That we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. तो वो क्या बता दी, देखना है आने वाले टाइम में क्या होगा. हम देखेंगे टिमोथी जो है वो महमूद के बेड में बैठा हुआ है और वहाँ पे महमूद के सिर्फ कपड़े और शूज़ हैं और महमूद का कोई साइन नहीं रहेगा. बेसिकली वो क्या बताना चाहती थी कि टिमोथी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जितना डेंजरस हो रहा है, एक दिन वो, क्योंकि वो कुक के रूम में सोता था, एक दिन वो कुक को खा जाएगा. कुक जो है वो स्वर्ग से धार जाएंगे और हमको टिमोथी मिलेगा वहाँ पे मस्त आलीशान तरीके से उसके बेड पे बैठा हुआ, और जो है महमूद के सिर्फ कपड़े और जूते ही मिलेंगे. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. Obviously, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टिमोथी ने जो महमूद है उसको कचर पचर करके खा लिया हो, लेकिन जब वो 6 months का हो गया, अच्छा ये जो एनिमल्स होते हैं दे ग्रो वेरी फास्ट, उनकी हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है. तो जब वो 6 months का हो गया ना, तो वो काफ़ी कम लाइक फ्रेंडली नहीं था अब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, थोड़ा डेंजरस सा लगने लग गया था. When out for the walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो जब वो जो हमारे राइटर हैं, जब वो उसको घुमाने के लिए लेके जाते थे, तो he would try to steal away from me, मतलब वो चाहता था क्या कि थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाए, भाग जाए वो वहाँ से. Leave stealthily मतलब थोड़ा सा फटाक से वो कहीं बाहर जाए, चला जाए, so that he can stalk a dog or a cat. मतलब वो किसी डॉग के पीछे पीछे चलने लग जाए या किसी कैट के. बेसिकली why would he do that? Because he wanted to eat them. Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. So जो poultry house जहाँ पे आप सारे hen को रखते हो, ओके, तो वहाँ पे कभी कभी रात में वहाँ से frenzied cackling you could hear. What is the meaning of frenzied cackling? मतलब बहुत ही लाउड नॉइस आती थी, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी.
तो जस्ट इमेजिन अगर कोई टाइगर जो है वो हेन के बीच में चला गया, उसने एक पंजा यहाँ मारा, दूसरा पंजा यहाँ मारा, तो आवाज़ें तो आएंगी ना, और वो भी काफ़ी दर्द भरी आवाज़ें आएंगी। तो रात में बहुत ही फ्रैंटिक कैकलिंग आती थी वहाँ से। फ्रेंजीड का मतलब होता है लाउड एंड फ्रैंटिक, कैकलिंग का मतलब होता है नॉइज़। और जब सुबह आप जब वहाँ पे जाके देखते थे तो वहाँ पे आपको क्या दिखता था, दैट फेदर्स आर लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, मतलब हर जगह जो है पंख ही पंख बिखरे पड़े हैं, क्योंकि पंख ही बचे हैं, बाकी तो गया टिमोथी के पेट में। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी इतना डेंजरस होता गया था कि उसको अब ज़्यादा चेन करना पड़ रहा था, पहले तो उसको खुला रखते थे। And finally, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. और उसके बाद क्या हो गया, जब महमूद जो है ना वो महमूद का पीछा कैसे करने लगा, एकदम विलेन वाली आंखों से। विलेनियस इंटेंट मतलब विकेड एंड डेंजरस प्लान और आइडिया, कि आज तो बस रात में जब मैं इसके रूम में सोने जाऊंगा तो फचाक एंड तड़ंग एंड ख़त्म, राइट। इसको बोलते हैं एकदम विलेनियस आइडिया। सो मोगैम्बो टाइप के एक्सप्रेशंस के साथ जब वो उसका पीछा कर रहा होता था, ग्रैंडफादर ने नोटिस कर लिया, उन्होंने बोला बेटा अब तो बहुत हो गई, अब हम इनको जू शिफ्ट कर देंगे। Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. So, अब जब ग्रैंडफादर जो थे वो टिमोथी को लेके लखनऊ के एक जू में गए, एंड ऑब्वियसली उनको फर्स्ट जो क्लास कंपार्टमेंट है उसमें ट्रैवल करना पड़ा, और उसमें वो दोनों ही थे, क्योंकि और तीसरा तो कोई आएगा नहीं, है ना। टाइगर के साथ एक जर्नी, ट्रेन जर्नी कोई नहीं करना चाहेगा। तो ग्रैंडफादर उसको लखनऊ में लेके गए, वहाँ जू में लेके गए, एंड वहाँ सब बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि एक उन्हें इतना अमेजिंग टाइगर मिला था हु वॉज वेल फेड, जिसे प्रॉपरली खिलाया गया था, मतलब ही वॉज हेल्दी एंड ही वॉज सिविलाइज्ड, मतलब ही वॉज पोलाइट एंड वेल मैनर्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ही वॉज पोलाइट, बहुत फ्रेंडली भी था, वेल मैनर्ड था वो। सो दे वर वेरी हैप्पी टू रिसीव हिम एज अ गिफ्ट। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. अच्छा 6 months बाद क्या हुआ, जो इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्हें लखनऊ जाना था किसी काम से। तो ग्रैंडफादर ने क्या सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मैं जाके एक बार टिमोथी से मिल आता हूँ। सो व्हाट डिड ही डू, he went to the zoo to see how Timothy was getting on. Getting on का मतलब क्या होता है, like how you are progressing in a particular way, कैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है या नहीं जा रहा है, if you are happy and all. जैसे आप अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में अगर डाल देते हो तो आप उसके साथ मिलने जाते हो ना, यू वुड वांट टू नो। तो वैसे ही ग्रैंडफादर वाज वेरी कनेक्टेड विद टिमोथी, सो ही वांटेड टू नो कि वो अच्छे से रह रहा है या नहीं रह रहा है। सो I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. So, अब जो हमारे राइटर उन्होंने क्या बोला कि वो नहीं जा पाए थे उनके साथ, लेकिन जब वो वापस देहरा आ गए, उनके ग्रैंडफादर से मिले, तो जो जो वहाँ हुआ उनको विस्तार में पता चला। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. जैसे ही वो लखनऊ पहुंचे, he could not wait and he straight away went to the zoo. और जैसे ही वो जू गए तो उन्हें पता था कि कौन से केज में टिमोथी को रखा था, तो वो डायरेक्टली पहले उसी केज में गए where Timothy had been interned. Interned मतलब initially where he was kept. The tiger was there, crouched in a corner. अब वहाँ पे वो टाइगर भी था और वो एक जगह एकदम बैठा हुआ था। Full grown and with a magnificent striped coat. वो एकदम अब बड़ा हो चुका था, full grown था, और उसका जो कोट था, मतलब here we are talking about the skin of the tiger which was looking magnificent. उसके जो stripes थे और वो उसकी जो skin थी वो बहुत beautifully shine कर रही थी। Hello Timothy, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. So grandfather ने बोला hello Timothy और उन्होंने हाथ डाला अपना केज के अंदर।
The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. So वो जो टाइगर था वो गया ग्रैंडफादर के पास और दोनों हाथ जो थे उन्होंने जो ग्रैंडफादर के दोनों हाथ थे वो उन्होंने अपने सर पे रखने दिए. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. अब ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, वो उसके फोरहेड को स्ट्रोक कर रहे थे, उसको सहला रहे थे और उस टिकल्ड हिज ईयर्स. जो ऐसे आप कभी भी किसी जानवर के जो ईयर्स होते हैं आप उसको वहाँ पे खेलते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है. एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, और जब भी वो ग्राउल करता था लाइक आवाज़ निकालता था तो ही वुड स्मैक हिम अक्रॉस द माउथ, मतलब चट्ट से एक हल्का सा प्यार से एक मतलब मार देते थे. और वो इसी तरीके से जब वो छोटा था इसी तरीके से वो उसको चुप कराते थे. He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. So he licked grandfather's hands. तो जो grandfather के hands को वो lick कर रहा था, मतलब वो चाट रहा था. And only sprang away, और अचानक से वो पीछे चला गया. कब? जब उसके केज के जस्ट बगल वाले केज में एक लेपर्ड था. तो लेपर्ड जैसे आके ग्राउल करता था तो एक तरीके से उसको डर लग जाता था and he would just go back. Snarled at him मतलब growl at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. Grandfather ने उस leopard को शू कर दिया, मतलब उसको बोल दिया जाओ यहाँ से, या उसको डरा दिया बेसिकली. तो leopard पीछे हो गया and उनका tiger वापस आ गया and he again started licking his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corners. लेकिन हर थोड़ी देर बाद जो है leopard वापस आ जाता था, टाइगर को डर लग जाता था, टाइगर वापस पीछे चला जाता था. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. तो अब यार कोई शेर के पिंजरे में हाथ डाल के उसको सहला रहा है, वो उसको लिक कर रहा है, तो बाकी लोगों को तो डर लगेगा ना. तो सब लोग आ गए थे देखने के लिए कि ये हो क्या रहा है. तो वहाँ का जो एक गार्ड था, वहाँ का जो एक केयर टेकर था, वो क्राउड से निकल के वो आया. उसने ग्रैंडफादर से पूछा भैया यहाँ चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो आप. I am talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? उसने बोला मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ. तुम नहीं थे क्या यहाँ पे जब मैंने 6 महीने पहले टिमोथी को यहाँ पे दिया था. I haven't been here very long. तो उसने क्या बोला, नहीं मैं बहुत टाइम से यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ. I haven't been here very long मतलब मैं बहुत टाइम से यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ. Said the surprise keeper, because वो जो कीपर था वो सरप्राइज था कि शेर के पिंजरे में हाथ डाल के उसको ऐसा ऐसा कर रहे हो. शेर है यार, थोड़ी तो इज्जत करो उसकी. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन. उसने क्या बोला, नहीं नहीं आप बहुत सही कर रहे हो, कंटिन्यू, बिल्कुल सही जा रहे हो सर, लगे रहो. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. उसने क्या बोला, आप तो ठीक है अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं तो ये काम कभी नहीं कर पाया, मैं उसे छू भी नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. Why don't you put him somewhere else? तो उनको क्या लगा, ये जो लेपर्ड है ना, वो लेपर्ड उनको परेशान कर रहा है टिमोथी को. तो उसने बोला तुम इसको कहीं और शिफ्ट कर दो. Suggested grandfather that leopard keeps frightening him. वो लेपर्ड उसे पूरे टाइम डराता रहता है. I will go and see the superintendent about it. तो उन्होंने बोला मैं जो बेसिकली सुपरवाइजर है, जो यहाँ पे पूरे इसका जो प्लान करता है कौन कहाँ रहेगा एंड हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सुपरिटेंडेंट से जाके बात करता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ कि लेपर्ड के और टाइगर का केज जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस रखो. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early. ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो देखने गए, मिलने गए सुपरिटेंडेंट से, लेकिन उनको क्या पता चला कि वो तो आज घर जल्दी निकल गए हैं. And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. So, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा ढूंढा उन्होंने कि कोई मिल जाए जिससे वो बात कर सके, लेकिन वापस वो टिमोथी के केज पे आ गए. It was beginning to get dark. अब उन्हें बाय बाय करना था, रात होने वाली थी. So he had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes. वो 5 minutes से उसको stroke कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसके साथ मतलब मस्ती कर रहे थे. When he found another keeper observing him with some alarm.
तो उन्होंने क्या देखा, एक और बंदा खड़ा था हु वाज आल्सो कीपर देयर, केयर टेकर था, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉकिंग वे में उनको देख रहा था, और एज इफ ही वांटेड टू टेल हिम दैट प्लीज बी केयरफुल, वो उनको एक तरीके से अलर्ट करना चाह रहा था. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ग्रैंडफादर ने उसको देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो वही बंदा था जब उन्होंने टिमोथी को वहाँ पे शिफ्ट किया था, तब वही बंदा था जिसने टिमोथी को एक्सेप्ट किया था. Hey, you remember me? said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage, away from the stupid leopard? तो अब जैसे स्कूल में जैसे आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, सपोज आपके बच्चे को कोई दूसरा बच्चा परेशान कर रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, मैम आप हमारे बच्चे की जगह चेंज कर दीजिए, इन दोनों को साथ में मत बिठाइए, वो उसको बड़ा परेशान करता है. सो ग्रैंडफादर ने सेम फीलिंग्स के साथ क्या कहा, अरे आई रिमेंबर यू, तो तुम एक काम करो, तुम ये लेपर्ड का और टाइगर जो है इन दोनों की जगह शिफ्ट कर दो, वो लेपर्ड उसे बहुत परेशान करता है. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. बट सर, ये आपका टाइगर नहीं है. I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. उन्होंने बोला, अरे हाँ मुझे पता है भाई, मतलब अब ये मेरा टाइगर नहीं रहा, अब ये जू का हो गया है, लेकिन एक आध सजेशन तो ले ही सकते हो ना तुम मुझसे. I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. Oh, उसने क्या बोला, सर मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से पहचानता था, वो 2 महीने पहले मर चुका है. तो ये कौन सा टाइगर है जिसके पिंजरे में जो ग्रैंडफादर है उन्होंने अपना पूरा हाथ डाला हुआ, वो मस्त तरीके से उनके हाथ को लिक कर रहा है, और बाकी लोग ने बताया कि वो बहुत डेंजरस है. डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर. यस सर, ऑफ निमोनिया. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. तो ग्रैंडफादर ने बोला डाइड, मर गया? उन्होंने बोला हाँ सर, वो निमोनिया के कारण मर गया, और ये जिस टाइगर के साथ अभी आप खेल रहे हो, इसको लास्ट मंथ ही हिल्स में पकड़ा गया है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. उनको समझ में नहीं आया वो क्या बोले. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म. वो जो टाइगर था वो अभी भी उनके आर्म को चाट ही रहा था. विथ इंक्रीजिंग रेलिश, और बहुत ही मज़े के साथ, जैसे कि आप खाना खाने के पहले मस्त उसको सूंघते हो, इंजॉय करते हो, एंड देन यू टेक अ बाइट विद अ लॉट ऑफ रेलिश, मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ वो चाट रहा था उनके हाथ को. ग्रैंडफादर took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. ग्रैंडफादर ने बड़ी ही मुश्किल से अपना हाथ निकाला, ऐसा लगा पूरा उनको जो है ना, what took him now seemed to him an age, मतलब उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी देर में उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, उनका हाथ कभी भी जा सकता था. राइट, वो जो टाइगर था उसकी एक बाइट और उनका हाथ अंदर और बाकी के वो बाहर, तो उनको लगा जैसे पता नहीं कितने टाइम हो गया है उनका हाथ अंदर है. With his face near the tigers, he mumbled. तो उन्होंने अपना फेस जो था वो टाइगर की तरफ किया, और क्या बोला उन्होंने धीरे से, गुड नाइट टिमोथी. तो वो पता नहीं उनको अभी भी मन किया कि नहीं शायद ये मेरा टिमोथी है, और उन्होंने ऐसे देखा कि हाँ ये तुम्हें कुछ नहीं पता, और उन्होंने बोला गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक. स्कॉर्नफुल मतलब लाइक बहुत ही ऐसे कि हाँ तुम्हें क्या पता है. फीलिंग और एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसिशन, मतलब कि बहुत बुरा लगा मुझे, तुम क्या बोल रहे हो, और ये थोड़ी ना बात होती है. तो उस फीलिंग के साथ उन्होंने उस कीपर को देखा, वर्कड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और फटाफट वो उस जू से निकल गए, क्योंकि डर तो लगा था, डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है. राइट, so this was our chapter guys. I hope you liked it. You remember the last chapter? The last chapter was, what was the last chapter that we did? जिसमें bear होता है, the bear story, उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, लास्ट में there is a twist. So similarly in this chapter we had a twist at the last. अगर grandfather का हाथ अगर गया होता तो, अगर उस शेर ने खा लिया होता तो, सो इस बहुत सारे तो के जवाब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में. So till that time, because in our next video we are going to start with the summary of this chapter,
and followed by question answers. So तब तक के लिए stay tuned, stay safe, stay connected and I'll see you very soon. Bye bye.